How are you? I hope you are doing well at your home. Students, as you know that you are staying at your home and taking the online classes of your subject. Right now, this is the information technology subject, and we are going to have the Java programming. As you know that right now the object-oriented programming is going on, and in this we are taking a small topic here. The topic is threads. That's the most important thing for you. Okay, so in thread, how we are going to define it, what are the methods to define, okay, what is thread scheduler, what is start method, what is run method, okay, how to implement the interface, okay, how to extend the thread class, many things are there. So you will get the answer of these questions in this video, okay, and right now this video is only for your practical demonstration, right? And for by using the practical demonstration, you are having the each and everything, right? So what are you waiting for? Please come to my laptop screen so that I can show you the each and every important steps of threads. Okay? Please come. Okay students, now I am going to start the class. In today's class, as you know that we are going to have a new topic, that is threads. That's the most important part of the Java programming, and this is the one of the important part of the advanced Java. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आपने आदर्शन के बारे में समझा, बहुत सारे कमेंट भी आपने दिए। इस वीडियो में भी आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। So students, right now we are going to have the topic thread. तो thread है क्या? What is thread? Okay, thread क्या है? So thread is nothing but thread is the one kind of separate flow of execution. Yes, आप याद रखिएगा, thread एक तरह का आपको ये बताता है कि वो सेपरेट एक टास्क है, वो ऐसा टास्क है जो सेपरेटली वो एग्जीक्यूट होगा। वो कैसा टास्क है जो सेपरेटली आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जितने भी आपके टास्क होते हैं जो आप अकॉर्डिंग टू थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं, ऑल द थ्रेड्स आर इन इंडिपेंडेंट मोड, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये तो बात कर लिया कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक तरह का टास्क है जो सेपरेटली फ्लो होता है। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं यहाँ, ठीक है। एक टॉपिक है आपका व्हाट आर द यूजेस ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, नंबर 1 मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, नंबर 2 एनिमेशन, नंबर 3 वीडियो गेम्स, एंड नंबर 4 वेब सर्विसेज और वेब सर्वर, नंबर 5 एप्लीकेशन सर्वर। इतने सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको यहाँ पर जो यूजेस हैं इन सब जगहों पर, इन सब एरियाज़ में आपका थ्रेड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इज, जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सपोज करिए 4 लोग हैं, 4 अलग अलग जगहों पर हैं, 4 persons are there and 4 are situated at a different place, and all are trying to access the net banking which is given by the State Bank of India, that's the online SBI. Now if the person A is trying to access, they are able to access it, and at the same time the person 2, person 3 and person 4, all the persons are able to access successfully. How it could be happen? How it could be happen? Because of threads. Right now the multi-threading is going on. Multi-threading, एक साथ कई लोगों को एक ही चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हैं। आप अब देखा जाए कि पर्सन ए वो अपना टास्क कर रहा है, पर्सन 2 वो अपना टास्क कर रहा है, पर्सन 3 वो अपना कर रहा है। सबके लिए अलग अलग टास्क है, यानी कि अलग अलग थ्रेड्स आपके रन है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप एक्सेस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो थ्रेड है वो डिफरेंट हो सकते हैं आपके, ठीक है। डिफरेंट टास्क हो सकते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेकर के आपको बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, किस तरीके से हम यहाँ पर अपने जो आपका
थ्रेड है उस थ्रेड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए मैं सीधे आपको अपनी नेटबीन्स की स्क्रीन पर ले कर चल रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम ये समझेंगे किस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। और साथ में साथ हम थ्योरी की पोर्शन देखते रहेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने एक क्लास क्रिएट किया। क्लास का नाम बिल्कुल सिंपल जैसे आप पहले क्रिएट करते थे आप। उसके बाद उस क्लास के बाद आपने यहाँ लिखा है एक्सटेंड, और उसके बाद ये आपका एक्सटेंड के बाद आपने यहाँ लिखा है यहाँ पर थ्रेड, ठीक है। थ्रेड आपका प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी आपका एक प्री डिफाइंड क्लास है और एक्सटेंड एक कीवर्ड है। ये जो है आपका एक्सटेंड एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर मेथड नंबर 1 है आपका बाय एक्सटेंडिंग द क्लास। हम यहाँ पर जो क्लास है उसको ओवरराइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर हमने जो थ्रेड की सहायता ली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बनाया एक क्लास को आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं आप, अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक आपने बनाया फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया, ठीक है। यहाँ पर बनाया फंक्शन आपने रन, ठीक है। एक फंक्शन बनाया है रन। जब आपने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है वही बता देता हूँ आपको मैं। एक फॉर लूप लगाया गया है और यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड ये चीज़ आपका प्रिंट कराया गया है। 5 बार आपका लूप चलेगा। देखिए लिखा है i लेस देन इक्वल टू i लेस देन 5, ठीक है। 5 बार आपका लूप चलेगा। ये रन के अंदर मैंने डाल दिया है ये, ठीक। अब आपका मेन फंक्शन डिक्लेयर हो गया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आ गया अब, ठीक है। आपने देखिए यहाँ पर क्लास का नाम क्या रखा है आपने, थ्रेड 1। क्लास का नाम रखा है आपने थ्रेड 1। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया टी, न्यू आपका ऑपरेटर हो गया और थ्रेड 1 आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। तो टी आपका ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया और टी नाम के ऑब्जेक्ट के बाद टी डॉट स्टार्ट आपने लिखा। टी डॉट स्टार्ट क्यों लिखा मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा आपको मैं। और उसके बाद फॉर लूप आपने चलाया और यहाँ पर आपने मेन थ्रेड ये जो चीज़ है आपको प्रिंट कराया। फिर सारे कर्ली ब्रैकेट्स आपने बंद कर दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम है ये। अब यहाँ पर जो आपको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये स्टार्ट क्या है, ठीक है। ये स्टार्ट क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें समझाने के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन करते ही एक आपका थ्रेड है जो प्री बिल्ट है आपका पहले से बना हुआ है, वो आपका पहले चलेगा और वो थ्रेड का नाम है मेन थ्रेड, ठीक है। हर प्रोग्राम में मेन थ्रेड होता है आपका। सबसे पहले आपका ये एग्जीक्यूट होगा, वो आपका चलेगा ये। सो व्हेन वी स्टार्ट एनी ऑफ द जावा प्रोग्राम, one thread begins to run, okay, and the name of that thread is main thread, okay। सो मेन थ्रेड क्या होता है कि आपको चूंकि प्रोग्राम को रन करना ही होता है तो मेन थ्रेड आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है ये, ठीक है। मेन थ्रेड आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब जब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ में अब एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पर कि स्टार्ट जो आपका है वो क्यों किया गया है, ठीक है। व्हेन वी यूज़ स्टार्ट मेथड देन इट स्टार्ट द न्यू थ्रेड। किसी भी न्यू थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट फंक्शन जो एक प्री बिल्ड फंक्शन है, जो पहले से जो ये जो फंक्शन है आपका प्री बिल्ड फंक्शन है वो ऑलरेडी आपका बना हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब हम इस थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो आपके रन हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो आपका रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1, ये स्टार्ट जो मेथड है उसका काम मैंने बताया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है आपका कि अगर आपने यहाँ पर आपने रन फंक्शन को यूज़ किया, यहाँ पर आपने इस जगह पर, तो जब आप रन फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे आप, तो रन फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर स्टार्ट को हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे रन। ऐसा करते ही जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे
तो आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो हर बार एक जैसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टअप जब आप थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं तो उस समय आउटपुट को आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक जैसा ही आएगा। आप अपने प्रोग्राम को कई बार रन करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप इसको रन करिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि स्टार्ट फंक्शन क्यों यूज़ किया गया है अपने थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, ताकि हमारा जो हमारा मेथड्स है, जो रन मेथड है वो हमारा रन चल सके, हमारा वो हम उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर रन मेथड को यूज़ कर लें तो वो आपको सिंपल जैसे यूज़र डिफाइंड मेथड होता है बिल्कुल वैसे ही आपका काम करेगा। आपको हर बार आउटपुट एक जैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आते हैं हम बिल्कुल अब थर्ड पॉइंट पे। अब इफ़ वी रिप्लेस स्टार्ट with run then output is same at all the time, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये थर्ड पॉइंट है ये। तो ओवरऑल जो फर्स्ट पॉइंट था वो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्टार्ट मेथड आपके मेथड को स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपका रन जो आपका मेथड है वो भी आपका चल जाए। आपका थ्रेड को स्टार्ट किया और थ्रेड को स्टार्ट करने के बाद जो उसका मेथड है वो आपका रन हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बताया मैंने आपको कि इफ़ यू डोंट यूज़ द स्टार्ट, अगर हम इस स्टार्ट को यूज़ ना करें हम, ठीक है, और रन को वहाँ पे लिख दें हम, तो एक नॉर्मल मेथड की तरह काम करेगा वो, ठीक है। वो क्या करेगा, नॉर्मल मेथड को कॉल करेगा और वही उसी के हिसाब से आपका रन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर हमने स्टार्ट को रन से रिप्लेस कर दिया तो अब वहाँ पर जो आउटपुट है वो आउटपुट आपको हर बार एक जैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टार्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। स्टार्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल है, वाई वी इन्वोक द स्टार्ट मेथड। क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड को हम क्यों इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए कि जब कभी भी हम स्टार्ट मेथड को इन्वोक करते हैं, यूज़ करते हैं हम, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो थ्रेड के साथ एक रजिस्ट्रेशन करे, ठीक है। जो हमारा थ्रेड है उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन करे। यहाँ पर जो भी आप अनवांटेड आउटपुट देखते हैं आप स्टार्ट की वजह से, या फिर आप यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप देखते हैं आप इस स्टार्ट की वजह से, वो होता है केवल जो एक ही रीज़न की वजह से, वो होता है थ्रेड शेड्यूलर। वो होता है केवल थ्रेड शेड्यूलर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, प्रॉपर तरीके से वो आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट यहाँ डिफरेंट हो सकता है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर काम क्या हुआ, यहाँ पर काम ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन करने का काम, किसके साथ, थ्रेड शेड्यूलर के साथ। तो ये करता है स्टार्ट, ठीक है। इसीलिए ये जो स्टार्ट मेथड को हार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कहा गया है। याद रखिएगा, हार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट फंक्शन को, ठीक है। ये स्टार्ट फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये स्टार्ट फंक्शन ऑलरेडी आपका यहाँ पर इस वाले क्लास के अंदर है, पहले से ही है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर। और ये एक यूज़र डिफाइंड मेथड है आपका, ये एक यूज़र डिफाइंड मेथड है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, कर ये रहे हैं कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर क्लास को उसको ओवरराइड कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक प्री डिफाइंड क्लास को यूज़ कर ले रहे हैं, इसका नाम है थ्रेड। थ्रेड का टी कैपिटल होगा, ध्यान रहे, थ्रेड का टी कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इतना कुछ समझ लिया। अब एक छोटा सा काम आपका और हम समझ लेते हैं, वो है हमारा, अभी मैंने बात की थी यहाँ पर, जिसका नाम है थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है। तो थ्रेड शेड्यूलर जो होता है वो JVM का पार्ट है, जावा वर्चुअल मशीन का पार्ट है ये। और इसके अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे आप कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम कि मल्टी थ्रेडिंग आपकी हो रही है, तो मल्टी थ्रेडिंग के समय सभी लोग प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। कुछ देर के लिए सपोज करिए कि मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, केवल एक थ्रेड आपका चल रहा है,
तो जाहिर सी बात है जो अदर पर्सन्स हैं उनको अब एक क्यू में के तहत आपको वेट करना होगा उनको। जब पहला वाला काम ख़त्म कर लेगा तब दूसरा वाला एक्सेस करेगा, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग के समय जो प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबिलिटी आपकी हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो आपका थ्रेड शेड्यूलर की वजह से ही हो रही है, मल्टी थ्रेडिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। इफ़ मल्टीपल थ्रेड आर वेटिंग टू गेट अ चांस ऑफ एग्जीक्यूशन, बहुत सारे अगर थ्रेड हैं जो आप वो वेट कर रहे हैं कि रन हो, देन सीक्वेंस ऑफ थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड इट इज डिसाइडेड बाय थ्रेड शेड्यूलर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर जो आपको आउटपुट दिखा रहा है, आपको जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो आउटपुट आपका कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो वो आउटपुट आपको दिखा तो रहा है, आपको उसका जो सीक्वेंस है आउटपुट दिखाने का वो आपका थ्रेड शेड्यूलर ही डिसाइड करता है, ठीक है। किस आउटपुट को कब दिखाना है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रेड शेड्यूलर की होती है, ठीक है। यहाँ पर हम जो आपका रिजल्ट है उसके सीक्वेंस की, उसके ऑर्डर को हम एग्जैक्टली करेक्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर एक प्रॉपर तरीके से एल्गोरिथम को फॉलो करता है जो JVM टू JVM आपका वेरी करता रहता है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये तो मैंने आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, 2 कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। नंबर 1 स्टार्ट मेथड और एक रन मेथड, ठीक है। आपको आगे आपको बताऊंगा मैं कि रन एक प्री डिफाइंड मेथड में हम यूज़ करते हैं जब हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ करेंगे हम, जिसकी हेल्प से हम थ्रेड क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। रनेबल इंटरफेस वहाँ भी मैं आपको क्लियर करूँगा यहाँ पर मैं। तो अब आपने यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर 1 थ्रेड शेड्यूलर, नंबर 2 स्टार्ट एंड रन फंक्शन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं छोटे से प्रोग्राम में जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम करते हैं इसको रन करेंगे हम। ये आपका मेथड नंबर 1 है जिसमें कि हम क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं अपने थ्रेड को बनाने के लिए, ठीक है। अपने थ्रेड को बनाने के लिए क्लास को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी थ्रेड क्लास हमने बना रखी है, जो भी हमने ये थ्रेड क्लास बना रखी है उसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये मेथड नंबर 1 है थ्रेड को डिफाइन करने का। अब बारी है इसके आउटपुट की, तो राइट क्लिक करते हैं हम। राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल पे जाएंगे, वेट करते हैं आउटपुट का। ये रहा आपका आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको आउटपुट थोड़ा समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, स्टार्ट यूज़ किया है। तो सबसे पहले थ्रेड स्टार्ट होगा और थ्रेड स्टार्ट हुआ तो आपका प्रॉपर तो थ्रेड शेड्यूलर में आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो गया। प्रॉपर होने के बाद अब आपका ये एग्जीक्यूशन होता है। इसके अंदर जो कुछ भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो 5 बार इन्होंने मेन को प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर t.run आपने कहीं नहीं लिखा है, इस पूरे प्रोग्राम में t.run मेथड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसका भी आउटपुट आपको यहाँ मिल गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये थ्रेड के अंदर डिफाइन हो चुका है। आपने यहाँ क्या किया है, केवल आपने स्टार्ट की हेल्प से थ्रेड को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर चाइल्ड फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, चाइल्ड थ्रेड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप जितनी बार भी इसको करेंगे, ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट है कभी कभी आपका यहाँ पर जो सीक्वेंस है आपका मेन थ्रेड है वो आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कई बार इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको डिफरेंट आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है इस समय, ठीक है। आप कई बार करेंगे तो आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 हमारा है कि हम रनेबल इंटरफेस को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं। रनेबल इंटरफेस को यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी भी हेल्प से हम थ्रेड को डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले सवाल ये कि इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि इंटरफेस अभी तक आपको डिस्कस नहीं किया गया है। थोड़ा सा आपको इंटरफेस के बारे में जानना ज़रूरी है ये, ठीक है।
So interface is nothing but it's a one kind of class, but it is not behaving like a class. लुक मतलब कि क्लास जैसा दिखेगा लेकिन क्लास जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्लास जैसा ये दिखेगा नहीं है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस हो गया। तो इंटरफेस का मतलब हो गया एक तरह का, एक समझिए टू डू लिस्ट है हमारा कि जो जो लिस्ट में आप काम करना चाहेंगे उसी के हिसाब से आपने इंटरफेस को बना दिया आपने। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर मेथड्स एंड वेरिएबल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंटरफेस के अंदर आपका वहाँ पर मेथड्स और वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस में आपको इम्प्लीमेंट्स वर्ड लिखना ही पड़ेगा आपका। ठीक है, इंटरफेस में आपने क्या लिखा, पहले इंटरफेस का नाम लिखा, इंटरफेस कीवर्ड लिखा, इंटरफेस कीवर्ड के बाद इंटरफेस का नाम लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा, फिर मेथड्स और वेरिएबल्स आपने सारे डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह से जब आप क्लास को आप यूज़ करते हैं, आप क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, तो आप यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं आप, केवल और केवल क्लास की हेल्प से मेथड और वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल क्लास जैसा तो है लेकिन क्लास जैसा एग्जैक्टली बिहेव नहीं करता ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो आपका इंटरफेस के बारे में है। पॉइंट नंबर 1, ऑल द मेथड इन दिस आर एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखते हैं कि जब आप क्लास में किसी भी मेथड वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं या क्लास डिफ़ाइन करते हैं आप, वो ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्सेस मॉडिफायर की तरह यूज़ हो जाता है, या आप पब्लिक यूज़ करना चाहते हैं कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हिडन होगा एक तरह से, मान लीजिए चलिए आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वी कांट क्रिएट रेगुलर मेथड इनसाइड द इंटरफेस। रेगुलर जैसे हम क्लास के अंदर हम किसी भी तरह का मेथड वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर आप एक रेगुलर मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप। अगर मेथड डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ जुड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब क्या हुआ, मेथड मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर मेथड हम डिफाइन नहीं कर सकते हम। जब हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो जो वेरिएबल हो जाएगा वो हमारा पब्लिक स्टैटिक हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक और फाइनल हो जाएगा वो। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये आप आने वाले एडवांस जावा में आप पढ़ेंगे आप। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आपने यहाँ देखा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ये जब आप इंटरफेस को पढ़ते हैं यहाँ तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर जब आप थ्रेड को पढ़ते हैं यहाँ तो थ्रेड में आप एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। इंटरफेस में इम्प्लीमेंट्स और थ्रेड में आप यहाँ क्या पढ़ते हैं, आप केवल और केवल एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं जब आप क्लास पढ़ते हैं आप तो क्लास के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को भी क्लियर कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, आप बना सकते हैं आप, बट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो रनेबल नाम का इंटरफेस आप देख रहे हैं यहाँ, ये रनेबल नाम का इंटरफेस आपका प्री बिल्ट है। ये आपको मिलेगा java.lang में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बताया इंटरफेस के बारे में। अब जो अगले जो हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे हम, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये समझेंगे कि अगर हमें थ्रेड को डिफ़ाइन करना है तो रनेबल इंटरफेस की हेल्प से कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, रनेबल इंटरफेस की हेल्प से कैसे डिफ़ाइन करेंगे। चलिए देखिए आप, सबसे पहले एक मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा मैंने माई थ्रेड, क्लास का नाम रखा मैंने माई थ्रेड। फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ कर और यहाँ पर लिखा रनेबल। रनेबल आपका प्री बिल्ट इंटरफेस है ये। फिर जैसे मैंने फंक्शन आपका पिछले प्रोग्राम में लिखा था, बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्राम मैंने यहाँ लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद अब एक और क्लास मैंने बनाया, ये क्लास यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा क्लास बनाया पब्लिक क्लास थ्रेड। अब दूसरे क्लास का नाम रखा मैंने थ्रेड। मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। अब मेन फंक्शन करने देखिए ध्यान से आप, माई थ्रेड। पहले हम माई थ्रेड जो ऊपर की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे हम। ठीक है, जिसके अंदर इंटरफेस आपने मेंशन कर रखा है। माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया टी, न्यू माई थ्रेड कंस्ट्रक्टर आपका हो गया सेमीकोलन। फिर इसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या किया कि जो आपका दूसरा आपका यहाँ पर क्लास है आपका, ठीक है,
क्लास का नाम क्या रखा है आपने, थ्रेड। कैसे पता चला आपको, देखिए आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पर थ्रेड 1 को पढ़ रहे थे हम, तो एक मैंने बताया था कि क्लास ये प्री बिल्ड क्लास है ये आपका, ठीक है। इसी प्री बिल्ड क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए टी कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है, प्री बिल्ड। और यहाँ पर जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम रखा, हम कुछ भी रख दीजिए, T1 रखा मैंने यहाँ पर, और इस थ्रेड के अंदर मैंने टी को पास कर दिया, जो आपका माई थ्रेड है, माई थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पास कर दिया। और यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, T1 डॉट रन, ये मैंने लिख दिया T1 डॉट रन, और उसके बाद 5 बार मैंने मेन थ्रेड को प्रिंट कर दिया, ठीक। तो ये आपका जो छोटा सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि एक इंटरफेस के ज़रिए आप यहाँ पर थ्रेड को डिफाइन कैसे करेंगे। सिंटेक्स याद रहे, पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको डिफाइन करना होगा, फिर आप आगे यूज़ करेंगे आप, ठीक है। चलिए राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। चलिए देखिए ये आपका आउटपुट आ गया यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। पहले आपका देखिए चाइल्ड थ्रेड है, यानी कि जो जहाँ पर आपने रनेबल इंटरफेस आपने यूज़ किया पहले उसका आउटपुट आया है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया मेन थ्रेड का आ गया, ठीक है। So students, I hope you are able to understand the output here. Right now the runnable interface is mentioned in the my thread, ठीक है। रनेबल जो इंटरफेस है वो आपको माई थ्रेड के साथ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड थ्रेड है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका आउटपुट पहले आपको दिखा, फिर यहाँ पर आपने लिखा मेन थ्रेड। तो अब आपने देखिए जो रन आपने लिखा है यहाँ पर, ये एक ऐसा मेथड है जो प्री बिल्ट मेथड है ये। अब आपका ये क्या है, प्री बिल्ट मेथड है ये प्री बिल्ट मेथड आपको मिलेगा रनेबल इंटरफेस के अंदर, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट मेथड को यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है यहाँ पर। यहाँ मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ और रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। It is still taking little bit of time. See the result. पहले क्या था, चाइल्ड थ्रेड का रिजल्ट पहले आया था, उसके बाद आपका मेन थ्रेड है। इस बार देखिए मेन थ्रेड ऊपर है और चाइल्ड थ्रेड नीचे है यहाँ पर। रीज़न क्या है यहाँ पर, इस बार मैंने बताया था कि स्टार्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहले थ्रेड आपका स्टार्ट होगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन थ्रेड से जो हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका मेथड है उसका, वो मेथड आपका यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि T1 डॉट रन तो आपने कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। T1 डॉट रन आपने कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपका आउटपुट ये हो गया। सेम चीज़ हम जो आपका एक्सटेंड किया था हमने क्लास को, थ्रेड क्लास को, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर। अब मैं इसकी जगह रन लिख के देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है ये देखिए। तो ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, मैंने बताया था आपको कि रन लिखने का मतलब ये है कि इस वाले प्रोग्राम में आपका एक सिंपल यूज़र डिफाइंड एक नॉर्मल मेथड है, ये नॉर्मल मेथड के हिसाब से आपका ये चल रहा है ये, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए सिंपल। अब आप राइट क्लिक करके कई बार आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आउटपुट यही मिलेगा, पहले चाइल्ड थ्रेड फिर मेन थ्रेड, आपको ये ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। हर बार आपको ही मिलेगा, जितनी बार भी आप रन करेंगे आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस समय हम रनेबल वाले प्रोग्राम पे या रनेबल इंटरफेस के प्रोग्राम पे वापस आ चुके हैं, और अब बारी है कि अब इस वीडियो में आपके डाउट्स की बारी है। आपने यहाँ पर थ्रेड को अच्छे से समझा, यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से कांटेक्ट करके शेयर करें आप, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी जल्दी आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए, Okay students, I hope you are able to understand each and everything, and
Definitely you are able to understand what are the topics, what are the things delivered in this video. But students, you have to do a practical demonstration for the same. By doing the practical session, you are able to understand each and everything, right? So don't forget to subscribe my channel. Please like and share, and don't forget to press the bell icon, right? Because bell icon gives you one kind of notification for my latest videos. So students, thanks again for watching.